Hello dear. Now come to the Python revision 2 part 2. Here we will know about different operators. We have seven different kind of operators. We will know each and every one and how can we use those, and we will use these operators with the help of operator precedence, and we will solve the expressions. I hope you will be able to understand. Watch this video nicely and try to understand. Don't skip this. First one, arithmetic operator. See, these are the arithmetic operator: plus, minus, multiplication, division, modulus, returns remainder, exponent, power, floor division operator returns the quotient value in form of an integer. So let's. I think you already know about the plus, minus, star, and slash. Let's know these three things: percentage, exponential, or a floor division operator. Let's know what is the use. How can what you will get. Uh, First one is that percentage or modulus operator. Suppose if you write 5 percentage 2, it will return remainder. I hope you are understanding. If you are writing 5.0 percentage 2, it will return 1.0. If you write 5 percentage 2.0, it will return 1.0. That means 5 is integer and 2.0 is a float type. So it's the case of typecasting. That means float it returns the floating point. I hope you understood all these three examples. Come to the next operator, exponential or exponent इसको बोलते हैं. It's the means power. If you write 2 exponent 3, you will get 8. If you write minus 2 exponential operator 3, later minus 8. If you write minus 2 exponential operator 2, you return minus 4. I hope you got. Next come to the floor division operator. Okay, it returns the value in integer form. Suppose if you will divide 5 floor division operator 2, 5 floor division operator 2, it will return what? 2, not 2.0, not 2.1, not like that, not 2.5 also. It will return 2. If you write 5.0 floor division operator 2, it will return 2.0, not 2.5. If you write 5 floor division operator 2.0, it will return 2.0. I hope you are able to, why I am showing this thing in different integers में दिखाया आपको. फ्लोट मतलब डेसिमल को हमने इंटीजर में डिवाइड किया तो डेसिमल में शो कर रहा है. इंटीजर को हम डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट मतलब वैल्यू में हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, फिर भी वो फ्रैक्शनल में शो कर रहा है. ये सारी चीजें हम जब एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे ना, इससे में काम आएगा. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखा. I think you got all these arithmetic operators. How many arithmetic operators are there? Total 7 different kind of arithmetic operators. Next come to the relational operators. These are the relational operators generally you use in the programming or in the coding, Python programming. Logical, you know about the logical, and or not. Generally you are using also is identity operator.
is means equal to. If you are writing A is B means A is B, A equal to B. Is A is same to B? Yes or no? Is not. A is not B. इसका A is not, A is हम फॉर लूप वगैरह में करते हैं, बट जब हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, इवेलुएट करेंगे, उसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करेंगे, बट आइडेंटिटी ऑपरेटर आपने यूज कर लिया है फॉर लूप में, फॉर में, व्हाइल में। मेंबरशिप ऑपरेटर आपने यूज किया है फॉर में, फॉर आई इन रेंज। जो आई इन रेंज, आई मतलब एक काउंटर वेरिएबल है, वो रेंज से एक एलिमेंट पिक करता है, तो उसका ऑपोजिट है नॉट इन। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, प्लस इक्वल टू होता है, इक्वल टू प्लस कभी नहीं होगा, माइनस इक्वल टू, ये तो आपने किया है सब चीजें। असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है जो बी टू एज ऑपरेटर, ये बाद में देखेंगे इसको। दिस इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मीन्स जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, यू हैव टू फॉलो दिस प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं, प्रायोरिटी लेवल जो होता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? पैरेंथेसिस का। लोएस्ट प्रायोरिटी किसका है? ओआर का, और ऑपरेटर का। ठीक है, तो नॉट एंड और, एंड यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का बोर्ड में। बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, आप अगर इसको रिमेम्बर नहीं करोगे ना, याद नहीं रखोगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे, पक्का मैं बता रहा हूं आपको। 2 मार्क छूट जाएगा आपका, 2 मार्क कंपल्सरी आएगा आपका। ठीक है, तो मैनुअली तो करना पड़ेगा आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए 7 into 8 upon 8 फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 2। इसमें पहले देखेंगे कितने ऑपरेटर्स हैं, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हैं। देखेंगे कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसमें कौन सा है, स्टार, स्लैश, डबल स्लैश, ये तीनों एक ही प्रायोरिटी लेवल के हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टार में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56 स्लैश 8 डबल स्लैश 2। ठीक है, देन 56 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड मीन्स 56 बाय 8, मतलब अगर 56 को 8 में डिवाइड करते हैं, 8 7 8 जा 56, सो यहाँ डिवाइड करने से हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा डेसिमल में डबल स्लैश 2। ठीक है, उसके बाद 7 2 जा 7.0 डबल स्लैश, मतलब फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 2, और 2 3 जा 6, तो आपका आ जाएगा 3.0। आई होप यू अंडरस्टूड। सेम चीज देखते हैं हम इसमें, ट्राई करते हैं कैसे आ रहा है, 3.0 आ रहा है नहीं आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे। देखो 3.0 आ रहा है, आपको समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये चीजें। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है ना, और एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो है ना, ये हमेशा राइट साइड से कैलकुलेट होता है, बाकी सारे ऑपरेटर लेफ्ट साइड से होता है। तो अगर हमको सॉल्व करना है तो राइट साइड से सॉल्व करेंगे, तो 2 डबल स्टार 2 द पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देन 2 टू द पावर 8 मतलब 256। देखिए सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, 256 रिजल्ट आ रहा है नहीं, देखते हैं। आगे गॉट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन हेलो। पहले देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किस पे है, पहले ब्रैकेट को है, तो हेलो जो है इसका लेंथ कितना है 5, इक्वल टू 25 अपॉन 5 और 20 अपॉन 10।
पहले स्टेप में ये सॉल्व हो गया। सेकेंड स्टेप में हमारा कौन सा ऑपरेटर इक्वल 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 टू हाईएस्ट प्रायोरिटी है या स्लैश हाईएस्ट प्रायोरिटी है और हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो आपके इस प्रायोरिटी लेवल में देखिए आपके स्लैश हाईएस्ट प्रायोरिटी में आ रहा है और तो यहाँ आ रहा है इक्वल तो यहाँ पर है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा है स्लैश। सो 5 इक्वल टू 25/5 इक्वल टू 5 और अच्छा आपने डिवाइड किया है सो 5.0 देन 20/10 मतलब 2 मतलब 2 10 20 2.0 ठीक है। तब आप आ जाओ हाईएस्ट प्रायोरिटी किस पे है नेक्स्ट इक्वल टू का हाईएस्ट प्रायोरिटी है और का हाईएस्ट प्रायोरिटी इक्वल टू का हाईएस्ट प्रायोरिटी है 5 इक्वल टू 5.0 यस दोनों ट्रू है ट्रू और 2.0 अब देख रहे हैं। अच्छा और अगर आप और यूज करते हो और ऑपरेटर आपके पास है तो मतलब एनी वन इज ट्रू इज रिजल्ट इज ट्रू ट्रू मतलब जीरो ट्रू मतलब नॉन जीरो फॉल्स मतलब जीरो पहला का तो ट्रू हो गया है तो रिजल्ट भी ट्रू आएगा। आई होप अंडरस्टूड। देखते हैं इसको चेक करके ट्रू आ रहा है नहीं आ रहा है। इसे कॉपी करते हैं एक बार और फिर इसको चेंज करते हैं डबल इक्वल टू सिंबल में कोई प्रॉब्लम है आ गया ट्रू रिजल्ट ट्रू आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कैसे सॉल्व हो रहा है। मैंने छोटा छोटा एग्जांपल लिया है पहले फिर आपके एग्जांपल्स बड़े होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन 8 and 9 और 9 and 0 और नॉट 7 हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है एंड और एंड नॉट मतलब एंड और नॉट तीन चीज है तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है नॉट का। तो पहले लिखते हैं नॉट का 8 and 9 और 9 and 0 और नॉट 7 7 इज पॉजिटिव नॉट 7 मतलब नेगेटिव मतलब नॉट 7 ये नॉन जीरो मतलब जीरो नॉट 7 7 क्या है नॉन जीरो तो इसको जीरो बनाना है जीरो मतलब क्या है फॉल्स। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप किसका है एंड का है 8 अगर एंड ऑपरेटर रहे हो वो पहला वैल्यू चेक करेगा ये नॉन जीरो है यस नॉन जीरो है मतलब ट्रू ये सेकंड वन नॉन जीरो है यस नॉन जीरो है तो अगर इस सेकंड वन भी नॉन जीरो है तो सेकंड वन का वैल्यू ही प्रिंट कर लेगा और ये नॉन जीरो है यस नॉन जीरो है ये जीरो है तो यहाँ पे आ गया फॉल्स मतलब आपका आ गया यहाँ पे जीरो और फॉल्स। ठीक है तो 9 0 9 और 0 और फॉल्स तीन चीजें पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे 9 और को मतलब 9 और मतलब एक ट्रू हुआ तो ट्रू 9 देन फॉल्स तो एक ट्रू हो गया है स्टार्टिंग का ट्रू हो गया है और मतलब पहला ऑप्शन चेक करता है 9। आपको समझ में आ गया रिजल्ट क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज
6 into 3 प्लस 4 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, देन इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? स्टार का है, प्लस का है, डबल स्टार का है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का है, माइनस का है? हाईएस्ट प्रायोरिटी है किसका? डबल स्टार का। तो पहले उसी को सॉल्व करेंगे। 6 into 3 प्लस 4 to the power 2 मतलब 16, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 5 minus 8। ठीक है, अब आ जाओ स्टार प्लस फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, प्लस तो लोअर प्रायोरिटी है, माइनस भी लोअर प्रायोरिटी का है, तो स्टार और डबल स्लैश ये दोनों सेम प्रायोरिटी का है, तो हम स्टार को मिलकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 जा 18 प्लस 16 फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 5 मतलब 5 3 जा 15 मतलब 3 minus 8। ठीक है, अब आ जाओ प्लस 18 प्लस 3 21 माइनस 8 इक्वल टू 13। देखो इसका रिजल्ट चेक करते हैं पाइथन में। 13 आ रहा है, इसका शायद हमने चेक नहीं किया है, इसको चेक कर लेते हैं। 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन 3 लेस देन 5 और 50 अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 5। इसमें देखिए हमको पहले कौन सा ये सॉल्व करना है, पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी है या पैरेंथेसिस सबसे हाईएस्ट टॉप में है, तो पहले इनर प्रायोरिटी जो पैरेंथेसिस है पहले इसको सॉल्व करना है। 3 लेस देन 5 और 50 अपॉन 5 माइनस 5 से पहले ब्रैकेट है, तो ये जो 3 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर है ये आ गया 5, ये ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है, नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको। 3 लेस देन 5 और 50 अपन 5 माइनस 5 0। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रायोरिटी किसका है? लेस देन का है। लेस देन का कहाँ है? लेस देन यहाँ पे है, और का है उसके नीचे है। किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? अभी स्लैश का। स्लैश अगर आप 50 को 0 से डिवाइड करते हैं मतलब 50 डिवाइड 0 तो क्या आ रहा है? 0 डिवीजन एरर, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा? 0 डिवीजन एरर। तो 3 लेस देन 5 और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 डिवीजन एरर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा इसका? लेस देन सिंबल, 3 लेस देन 5 ट्रू, और 0 डिवीजन ऑपरेटर। फिर ट्रू 0 डिवीजन ऑपरेटर मतलब पहले अगर और ऑपरेटर है तो पहला अगर ट्रू हो गया, पहला जो कुछ है उसको चेक कर लेता है ट्रू, अगर पहला फॉल्स होगा तो सेकंड ऑप्शन चेक करेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका ट्रू। तो इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अपोजिट कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। देखो क्या हो रहा है। पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 2 मतलब 5 ब्रैकेट क्लोज, और 3 लेस देन 5। ठीक है, तो अब आ जाओ 50 अपन 0 माइनस 0 5 माइनस 5 मतलब 0 और 3 लेस देन 5, तो इसमें क्या आ जाएगा?
अच्छा 50 को अगर डिवाइड करते हैं तो जीरो डिवीजन ऑपरेटर आ रहा है सेम प्रॉब्लम आएगा, सेम जीरो डिवीजन एरर आएगा मैसेज, और 3 लेस देन 5 ट्रू। अब आ जाओ, जैसे ये और है, पहला है क्या, जीरो डिवीजन ऑपरेटर, जीरो डिवीजन एरर, दूसरा हुआ ट्रू। तो एक अगर दोनों में से और कोई भी एक मिस्टेक है तो वो ये आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा जीरो डिवीजन एरर रिजल्ट। देखते हैं सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। सिंटैक्स एरर, देखो सिंटैक्स एरर है यहाँ पे। सो जीरो डिवीजन एरर आ गया, ये देखो रिजल्ट आ जाएगा आपका ये। ठीक है, आई होप यू गॉट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 25/5 डबल स्टार 2, और इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, एक्सपोनेंशियल का। सो 25/5, 5 का टू द पावर 2 मतलब 25 प्लस 20/10, ये आ गया फर्स्ट, पहला स्टेप में ये हो गया। दूसरे है डिवीजन, यहाँ पे भी है डिवीजन, वहां पे भी है 1, जो हमने प्री बोर्ड में भी आया था। 1.0 होगा, वो 1 नहीं होगा, प्लस 2.0 होगा यहाँ पे, क्योंकि डिवीजन ऑलवेज पॉइंट में शो करता है। देखिए आप, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 25/25 अरे 1.0, अगर हम लिखते हैं 10/20/10 ये भी बोले 2.0, तो रिजल्ट आ रहा है आपका 2.0, रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 10 greater than 5 and 7 greater than 12 और नॉट 8। अच्छा इसमें बताओ, ये जो लेस देन सिंबल, ये ऑपरेटर कौन सा है, ग्रेटर देन, एंड, ग्रेटर देन, और नॉट ग्रेटर देन। इसमें से बताओ कौन सा ऑपरेटर का जो है प्रायोरिटी जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कौन किसका है, नॉट एंड और, इसमें से आपका हो जाएगा ग्रेटर देन सिंबल। तो पहले ग्रेटर देन सिंबल सॉल्व करेंगे। 10 ग्रेटर देन 5, 10 greater than 5, yes, true, and 7 greater than 12, false, or not 18 greater than 3, yes, true। अब आ जाओ ट्रू एंड फॉल्स। अब आ जाओ इस एंड और नॉट पे, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, नॉट का है, TRU एंड फॉल्स, और नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। अब आ जाओ एंड और के बीच में किसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, एंड का, और तो सबसे नीचे है, तो ट्रू फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, गॉट इट, ये वाला सब क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब आ जाओ यहाँ पे एक और एग्जाम, डिफरेंट काइंड, स्ट्रिंग ABC स्मॉल इक्वल टू कैपिटल ABC। हाईएस्ट प्रायोरिटी तो ब्रैकेट का है, तो हम पहले चाहेंगे ब्रैकेट पे, ABC इक्वल टू ABC एंड नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 2 इक्वल टू 3,
फॉल्स, और 3 इक्वल टू 4 फॉल्स। पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, फिर ब्रैकेट ऑलरेडी है अभी भी, उसको भी निकालना है। ए बी सी इक्वल टू ए बी सी एंड नॉट फॉल्स फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। ब्रैकेट हटा देते हैं, फॉल्स और फॉल्स इक्वल टू फॉल्स और का। ठीक है, अब आ जाओ एंड नॉट और इक्वल। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? इक्वल का है। ये बी सी इक्वल टू ए बी सी, नो, फॉल्स। एंड नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। देन आ जाओ फॉल्स एंड ट्रू इक्वल टू फॉल्स। I hope understood. Take another question. 5 less than 20 and not greater than. इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? रिलेशनल ऑपरेटर जो है लेस देन ग्रेटर देन सिंबल का हाईएस्ट प्रायोरिटी है, नॉट और एंड का लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो पहले रिलेशनल ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। 5 लेस देन 20 यस ट्रू एंड नॉट 5 ग्रेटर देन 10 फॉल्स एंड और नॉट के बीच में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? नॉट का है। तो हम पहले नॉट वाला पहले सॉल्व करेंगे। नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू। क्वेश्चन 11 समझ में आ गया आपको? इसको भी दिखा देते हैं आपको करके कंप्यूटर में। ये देखो, इसका रिजल्ट भी आ रहा है। क्या आ रहा है? हमारा फॉल्स आ रहा है ना। देखते हैं इसमें फॉल्स आ रहा है नहीं आ रहा है। ये थोड़ा ब्रैकेट में प्रॉब्लम आता है क्योंकि हम टाइप करते हैं। क्योंकि ये स्ट्रिंग है। फॉल्स आ गया, फॉल्स। एबीसी वाला फॉल्स आ गया, हमारा भी फॉल्स है। ये दो देखो, ये ट्रू आना चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा है। ट्रू आ रहा है। फिर ये देखते हैं, ये तो हम करना है अभी। -4। अच्छा ये बताओ पहला प्रायोरिटी किसका है? पैरेंथेसिस का है तो लिखिए -4 स्टार -2 डबल स्टार 3 प्लस लेन ब्रैकेट स्टार्ट इनर ब्रैकेट जो है पहले सॉल्व करना है। str6। अब 6 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। आप str फंक्शन लगा दिया मतलब 6 हो जाएगा आपका स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग हो गया। पहला स्टेप समझ में आ गया आपको? अब देखो इनर ब्रैकेट फर्स्ट प्रायोरिटी -4 इंटू -2 डबल स्टार 3 प्लस लेंथ 6। 6 क्या है? स्ट्रिंग है। लेंथ क्या है? 1। अब आ जाओ, अब बताओ मुझे का हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? एक्सपोनेंशियल जो डबल स्टार का पावर वाला जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो -4 इंटू -2 -2 का पावर टू द पावर 3 मतलब -8 प्लस 1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। -4 इसमें स्टार और माइनस में कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी है? स्टार एंड प्लस पे कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी है? स्टार का। सो -4 इंटू -8 इक्वल टू +32 प्लस 1 देखो +33। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। सो आज का जो टॉपिक रहा है आप इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
ये आपकी 7 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं आज के। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। आपको ये सारे ऑपरेटर्स का नाम याद रखना है। ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब मैंने बता दिया था आपको परसेंटेज से क्या होता है, डबल स्टार एक्सपोनेंट से क्या हो रहा है, फ्लो डिवीजन ऑपरेटर में कैसे डिवीजन मतलब डिफरेंस आ रहा है, 0.5, 5.0, फ्लो डिवीजन ऑपरेटर 2, ठीक है 2.0 आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको ऑगमेंट असाइनमेंट ऑगमेंटेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। ये जो लेफ्ट साइड में ऑपरेटर्स का जो प्रायोरिटी है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, नहीं तो आपके 2 मार्क्स कट जाएगा। एनी हाउ आपको याद रखना है। ये मैंने सॉल्व कराया आपके सामने। इस तरह से क्वेश्चन से आपको मिलेंगे फ्राइडे को जब एग्जाम होगा, इससे क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के दूंगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल हो गए आपके। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल है। मैंने 12 एग्जाम्पल आपको कराया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से एक्सप्रेशन आएंगे तो पक्का 2 मार्क्स को आएगा ही आएगा। 2 मार्क वाला जो कैटेगरी है उसमें 2 मार्क्स वाला आपका आएगा। तो अभी से तैयारी कर लो, ये फाइनल है आपके लिए। और कोई कुछ नहीं हो सकता इससे। इससे आप क्या कर सकते हो, ये ऑपरेटर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है दिख रहा है आपको राइट साइड में, इसको तो आपको एनी हाउ याद रखना है। ओके बेटा, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी